ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತೀಯತೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಒಂದು ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಲು ಬದುಕಲು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. 890 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾನವರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ
ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದರಿಂದ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಇತಿಹಾಸ. ಅದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ये इंसान से जो औरत, धन, दौलत, जमीन, इसके झगड़े को करने से किसी का भला नहीं होगा. ईमानदारी से चलने से सबको भला हो सकता. इसलिए आदि पुराण असुररिया मारी, वो किसी काम को नहीं आता. वेद पुराण होतिंगे मारी, जो वेद का पुराणों में होतिंगे बोले तो भगवान के नाम पे एक प्राणी को, जानवर को बलि देने का, उसको बलि देने का, उसके नाम पे भगवान का एक रास्ता दिखाते हैं. ये तो बहुत, जानवरों को मारना तो इंसान को मारना, ये सब जो है नहीं, जिसने बनाया ये सभी इंसान जानवर को, उनको ख़त्म करे जैसा होता है वो, ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी. वो बहुत बड़ा पाप का काम होता है. वेद पुराण होतिंगे मारी, राम पुराण रक्कसरिगे मारी. रामायण, ये रामायण में भी क्या देखे हम, वो बाण लेके पर बोल के उनको मारना, फिर इनको मारना, यही देखे हम. ये शरीर ही मंदिर है बोल के जो बसवा कल्याण का इतिहास बोलता है, अनुभव मंटप का, ये सच्चाई कहाँ पर भी नहीं मिलता. दुनिया के अंदर ये सच्चाई मिलने का जगह एक जगह है, महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप कर्नाटका में बसवा कल्याण. ये हो इनके वचन 770 शरण लोग, सभी मजदूर करने वाले, मेहनत करने वाले लोग लिखे हैं वचन. राम पुराण रक्कसरिगे मारी. मारी बोले तो किसी का भला नहीं होता, वो सिर्फ हिंसा 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 करने का होता है. फिर आगे क्या बोलते हैं, भारत पुराण गोत्रज्ञ मारी. भारत पुराण कौरव पांडवों का पुराण, वो लोगों का भी देखे होंगे देश के अंदर, इनका वो टीवी में क्या सीख सकते बताओ, हम उनसे क्या सीख सकते हैं. और हम वही जमीन का झगड़ा, जगह का झगड़ा, औरत के झगड़ा, इसी चक्कर में हम पुलिस स्टेशन को जाएंगे, कोर्ट को जाएंगे और फिरते रह के पागल होके, मानसिक रोगी होके एक दिन मरना है. लेकिन जिसने हमको बनाया है, बनाकर हमारा अंदर से सारी दुनिया दिखा रहा है, ये रास्ता दिखाए. सो अगर दुनिया में कोई तो एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, तो वो महात्मा बसवण्णा जी. इसीलिए इससे पहले, कुछ साल पहले, ये जो शोषित वर्ग अनुभव मंटप में थे सभी लोग, उन लोगों ने लिंग आयत धर्म स्थापना किए, जाति रहित धर्म. और इस धर्म में क्या है, सिर्फ शरीर ही मंदिर है, सबके अंदर भगवान है, बस एक ही एक रास्ता. ऐसे एक महान विचार को बहुत बड़ा रैलियां हो गए. जब इस धर्म को 890 साल पहले हुआ सो है, हमारे कर्नाटक के
जबकि मुख्यमंत्री श्री सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर हो उस पीरियड में उन्होंने क्या किया, ये सारी शरणों का अनुभव मंडप का, बसवण्णा का स्थापित अनुभव मंडप का विचार को वेरिफिकेशन करने लगाया, समिति बनाया, ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, सबके लिए बोल के उन्होंने दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिए। उन्होंने अभी तक मान्यता नहीं दिए और उसके बारे में क्या गलत है, क्या कुछ तो बोलना ना, कुछ भी नहीं बोले। फिर उस पीरियड में क्या अपप्रचार हो गए, धर्म तोड़ रहा है, इन्हों ऐसा कर रहा है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं। इलेक्शन रहने कुछ भी रहने, लेकिन सच्चाई को सच्चाई बोलना हर आदमी का काम होता है, हर लीडर का फर्ज होता है, लोगों को गुमराह करने का नहीं होता है। अभी जनवरी 18 तारीख को परसों महात्मा बसवण्णा अकेले नहीं, उनके साथ में 770 शरण लोग हैं। 1,96,000 धर्म प्रचारक थे वो जमाने में, 890 साल पहले। उन सबको एक न्याय दिलाने के वास्ते वो पीरियड में शरणों को हत्या किया गया है, उनका वचना जलाया गया है, बसवा कल्याण के अंदर बहुत कुछ बुरा हाल हो गए। वो सारे हमारे सिद्धारामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनको पूरा शरणों का नॉलेज है, उन्होंने पढ़ा है, इसीलिए उन्होंने कर्नाटक स्टेट के अंदर सांस्कृतिक नायक बोल के सरकार की तरफ से उनका पूरे मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाकर डिस्कशन करके उन्होंने सांस्कृतिक नायक बोल के घोषित किया है। उनको तो मैं कहता हूँ 12वीं शताब्दी में जो गरीब लोग मजदूर करने खाने वाले वो पूरे शरण बने थे। एक बाल बराबर झूठ नहीं बोले, किसी का निंदा नहीं किए, किसी को धोखा नहीं दिए। ऐसे शरण लोगों को एक न्याय दिलाने वाला अगर हमारा भारत देश में कोई तो अगर है तो मैं तो छाती पे हाथ रख कर कहता हूँ, दूसरे लोगों को कुछ भी बोलने दो, श्री सिद्धारामैया उन्होंने हमेशा के लिए सृष्टि के मालिक, उन शरणों का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहता हुए बोलते हुए मैं उनको पूरे भारत के बसवा अभिमानी, बुद्धा बसवा अम्बेडकर के पूरे अनुयायी और देश विदेश में रहने वाले पूरे एक अच्छे विचार के लोगों को मैं तरफ से मैं श्री सिद्धारामैया मुख्यमंत्री को मैं यहाँ से सर झुकाकर मैं शरणु करता हूँ। और ऐसा सच्चाई विचार को हर आदमी सपोर्ट करना चाहिए। वो इलेक्शन रहने दो, कुछ भी रहने दो, एक इतिहास में अगर सच्चा रहे तो वो सच्चा बोलना चाहिए और बुराई को बाजू में ढकलना चाहिए। इसीलिए मैं और एक बार महात्मा बसवण्णा का और एक वचन का विचार बोलना चाहता हूँ। श्री विभूति हो सदवर, श्री रुद्राक्षी धरि सदवर, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ धर्म। महात्मा बसवण्णा के इस वचन का भाव क्या होता है, आजकल मिलावट करने का काम बहुत चल रहा है शरणों की तत्व के अंदर। महात्मा बसवण्णा जी क्या बोलते हैं, कौन निशाने पे विभूति नहीं लगाता, श्री विभूति हो सदवरा, श्री रुद्राक्षी धरि सदवरा, ये रुद्राक्षी, नित्य लिंगार्चने माडदवरा, छाती के ऊपर कौन लिंग नहीं बांध लेते, और सद्भक्तर संगदल्लिरदवर, अनुभव मंडप, हर गांव में अनुभव मंडप का जरूरत है। आज लोग सब टेंशन बोल रहे हैं, ये इनका पूरा टेंशन निकल जाता और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने को आने का रास्ता बताया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी। इसीलिए ये जो संस्कार दिए, ये संस्कार छोड़कर बसवण्णा के साथ और किसी का फोटो लगाना, और किसी का फोटो बसवण्णा के साथ लगाना, और शरणों के साथ इनका लगाना, ये बहुत बड़ा डेंजर काम हमारा देश के अंदर हो रहा है। ये
ये जब तक हमारे उस जमाने में जितने भी अंबिगर चौड़ैया, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, मादर चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, हड़पद अप्पಣ್ಣ, ये ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರभು, सत्यक्क, संकव्व, महादेवी, ಹೀಗೆ इतना 770 शरण लोग, 1,96,000 उन लोगों के ऊपर उस जमाने में बहुत अन्याय हो गया था। वो पूरे अन्याय को न्याय दिलाए सो महात्मा बसवण्णा का विचार को वो पूरे लोग जहाँ पर भी बसवण्णा का विचार के साथ दूसरा फोटो लगाना, उनके साथ उनका ये करना, उनका विचारों को और मिलावट करना, ऐसा करने का कोशिश कोई भी करे तो आप लोगों को जिम्मेदारी होता है। ऐसा करने से उनको जो करते हैं ना, उनको रोकने का बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोके तो दुनिया का सब फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं ना, अनुभव मंटप का विचार हमारा देश का सबका भला करने का एक तत्व है। उसको बचाने का काम हम सब मिलकर करना पड़ता है। करे तो सबका भला हो सकता है। एक अच्छा काम करके कितने दिन जिए तो क्या हुआ। महात्मा बसवಣ್ಣ जी बोले ऐसा, लेशनिसिಕೊಂಡು ಒಂದೇ दिन ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ। अच्छा काम करके एक ही दिन जिंदा रहकर दूसरा दिन चले गए तो परवाह नहीं। ऐसा काम करेंगे बोलते आप सबको इस विचार महात्मा बसवण्णा का 25,000 वचन है। अभी भी 25,000 वचन मिले हैं। वो सब वचन वैज्ञानिक है, सबको ज़रूरत है। इतना बोलते हुए आप सबको ये सवेरे का टाइम पे अच्छा लगा ये विचार, तो भारत देश के अंदर सभी राज्य के लोगों को और जितने भी राजकारणी हैं, जितने भी स्वामी लोग हैं, धर्म के प्रचार करने वाले, उन सबको ये सच्चा विचार अगर पहुंच गए, उनके अंदर उन्हें कुछ समझ कर गलती कर रहा है क्या न समझ कर रहा है ये मालूम नहीं हो रहा। वो सच्चाई को समझे और सच्चाई के साथ रहे तो वही भगवान का पूजा होता है। इतना बोलते हुए मैं भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है ना, वो सबको महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का विचार सब लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सबको पहुंचाने का काम करते रहेंगे। बोलते हुए लास्ट में आप सबको मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।